صاحب الحمدللہ ہم لوگ جس انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہیں ہاسپٹل ہے الانصار ہاسپٹل جو ماشاءاللہ اس ڈائلیسس کے نظام کو ہوسٹ کر رہی ہے گویا اب جیسے ہم لوگ اس کی جب ابتدا میں نکلے تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کے پاس 6 مشینز ہیں 7 مشینز ہیں اور پھر اس کا پورا سیٹ اپ کا جب ہم نے بجٹنگ کی تو تقریباً 40 سے 45 لاکھ روپے کی ضرورت تھی. اب یہ حضرات جو ہے الانصار ہاسپٹل والے جب ان کے سامنے ہم نے تقاضا رکھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کام تو جو ہے اسی نیت پر ہم لوگ بھی ہاسپٹل چلا رہے ہیں, ہمارے اغراض و مقاصد بھی یہی ہیں. اگر آپ اس نیت کے ساتھ آئے ہیں تو ہمارا جو 40-50 لاکھ کا جو سیٹ اپ ہے وہ آپ کے اس کاز کے لیے حوالے ہے. تو ماشاءاللہ ہمیں کافی ہمت ہوئی, طبیعت جو ہے بہت زیادہ خوشی کا اظہار ہوا تمام ٹیم کو کہ میسور کے لیے ماشاءاللہ الانصار ہاسپٹل ہمارے درمیان میں موجود ہے. تو یہ 40-50 لاکھ کا ایک سیٹ اپ ہم لوگوں کو جو ہے ماشاءاللہ اس کاز پر اور ان کی نگرانی میں, یہ نہیں کہ صرف وہ دے کر سبکدوش ہو رہے ہیں بلکہ پوری ریسپانسبلٹی وی شولڈر آن دیم کہ پورے نظام کو وہ اس کو دے کر چلیں گے اس کے, جیسا میں نے پہلے بھی کہا. تو یہ تمام چیزیں درپیش ہیں. تو میں درخواست کرتا ہوں ہمارے الانصار ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر افتخار صاحب سے کہ وہ اس تعلق سے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں. آج ہمارے لیے بھی اس طرح میسور والے بڑی خوشی کا موقع ہے. یہ مبارک احباب علماء کرام میسور کے تیمور کے عمائدین سوشل ورکرز ہمارے سرپرست یہاں جمع ہیں. ہمارے ہاسپٹل کا مقصود یہی ہے جو اس وقت فکر کی جا رہی ہے. الحمدللہ جیسے اسماعیل بھائی نے بتایا کہ یہ ہاسپٹل تقریباً 10 سال پہلے شروع ہوئی اور 6 سال پہلے ڈائلیسس سینٹر بھی وجود عمل میں آیا. 7 ڈائلیسس مشین تھے تو اس کے ذریعے سے لوگوں کی ڈائلیسس کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. اور جو یہ جو ڈائلیسس کے مریض ہوتے ہیں ان کے حالات بھی ہمارے سامنے آئے کہ کیسے قسمہ پرسی کے حالات ہوتے ہیں. تو ہم نے بھی کوشش کی کہ جہاں ہو سکے ان کی مدد کی جائے اور کم سے کم کاسٹ میں اس کا کیا جائے. تو پہلے دن سے ہم نے رکھا کہ ڈائلیسس ہمارا جو ہوگی تو کاسٹ ٹو کاسٹ ہوگی. جیسے مولانا نے بھی فرمایا اور ڈائلیسس جو چلا رہے ہیں 1200 روپیہ کاسٹ پڑتا ہے. ہمارا بھی تقریباً یہی ہے 1200 روپیہ کاسٹ پڑ رہا ہے. تو اسی کاسٹ کو چلانے کی کوشش کی, تھوڑا سا اسپانسر بھی ہم تلاش کر رہے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اس میں تمام آرگنائزیشن ایک اللہ کے آرگنائزیشن ہے, انہوں نے بھی آ کے ہمارا ساتھ دیا. اور تقریباً اسی طرح صرف 400 روپیے مریضوں سے لے کر پھر 700 روپیے وہ دیتے تھے تو 1100 میں ہم تھوڑا کم کر کے کووڈ تک یہ سلسلہ چلا کہ صرف 400 روپے میں یہاں پر ڈائلیسس کیا جائے. کووڈ کے بعد حالات آئے تو ان پر بھی حالات آئے مالی, تو وہ مزید مدد کرنے سے پیچھے ہٹ گئے. ہم کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر سے کچھ اسپانسرز تلاش کر کے کم قیمت پر مریضوں کا علاج کیا جائے. ابھی ایسے ہے کہ جو دے سکتے ہیں ان سے پورے پیسے لے رہے ہیں, جو نہیں دے سکتے ان کو بھی 400-500 روپئے وہ لیتے ہیں اور باقی اسپانسرز ہمارے. لیکن بڑے چھوٹے پیمانے پر کوشش ہو رہی تھی چونکہ ہماری ریچ بھی بہت کم ہے. تو صرف 150 ڈائلیسس اس وقت یہاں پر ہو رہے ہیں ہر مہینہ, اور اس میں سے آدھے مریض ایسے ہیں جو 400-500 روپئے دیتے ہیں اور جو دے سکتے ہیں وہ پورے پیسے دیتے ہیں. تو الحمدللہ آج بڑا خوشی کا دن ہے کہ جو ہمارا ویژن ہے اور خواہش ہے جس کو ہم پوری نہیں کر پا رہے تھے, جو سیٹ اپ ہے اس میں اور بھی ہو سکتا تھا لیکن زیادہ ہم کر نہیں پا رہے تھے اسپانسرس کی کمی کی وجہ سے. اب اتنا بڑا عملہ اس نیک مقصد کو لے کے آگے بڑھا ہے تو ہم نے جیسے اسماعیل نے کہا کہ اپنے سروسز پیش کی. تو الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے وہ اس کا پورا استعمال انشاءاللہ غریبوں کی خدمت میں آپ حضرات کی مدد اور آپ حضرات کے ذریعے سے انشاءاللہ پورا ہوگا. اتنی گنجائش ہے کہ اس وقت جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں اگر انشاءاللہ 4 شفٹ چلائی جائے تو 600 سے زیادہ ڈائلیسس مہینے میں ہو سکتے ہیں. جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے اس میں ابھی 150 ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات کی توجہ مدد ہے تو انشاءاللہ بہت جلد 600 تک نمبر پہنچ جائے گا. اور ابھی انشاءاللہ پلاننگ بھی ہو رہی ہے الانصار کی 2nd فلور کی بھی کنسٹرکشن کا. تو اس پر گنجائش ہے کہ اگر یہ 600 تک نمبر پہنچ گیا تو اس کو بڑھا کے اور 1200 تک بھی نمبر چلایا جا سکتا ہے. اور یہ صرف آپ حضرات کی مدد ہی سے ہو سکتا ہے. سیٹ اپ تو ہے اور اسی مقصد سے سیٹ اپ کھولا گیا ہے اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہوگی اگر سب کے تعاون کے ساتھ اس کا غریبوں کو فائدہ پہنچے. ایک بات ہمارے سامنے بات آ گئی, ڈائلیسس مریض ہو جاتے ہیں تو ڈائلیسس کا کاسٹ میں سمجھتا ہوں وہ پاؤ یا 1/3 کاسٹ ہوگا. اس کے علاوہ ان کے دوائیوں کا خرچ, انویسٹیگیشن کا خرچ, اور یہ مریض بار بار بیمار ہوتے رہتے ہیں اس کا خرچ. تو اگر پورے میسور والوں کا ہم ڈائلیسس فری بھی کر دیں تو بھی ان کا صرف 1/3 مسئلہ ہم
हल कर रहे हैं। सिर्फ डायलिसिस वालों का 1/3 मसला हल कर रहे हैं, अभी उन्हीं का 2/3 मसला इलाज के सिलसिले का बाकी रहेगा। इतना बड़ा तकाजा हमारे सामने है। और डायलिसिस का पूरा मसला हम मैसूर वालों का हल कर दें तो उनके पूरे मैसूर वालों की सेहत का 1% मसला हमने हल किया है। 99 और बीमारियां हैं जो लोगों के साथ गरीबों को लगी हुई हैं, उसमें एक हॉस्पिटल ऐसे 20 हॉस्पिटल की जरूरत है। इतना मजमा नहीं बल्कि सारी उम्मत खड़ी होकर इस तकाजे की वजह से तहमदीन साहब ने भी बड़े दिलसोज अंदाज में कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को समझकर पूरी उम्मत खड़ी होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एक छोटी सी शुरुआत है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे और आपसे पूरी उम्मत से बहुत ज़्यादा खिदमत लेंगे। जहाँ तक अल अंसार हॉस्पिटल का ताल्लुक है, मैं तमाम मजमे को और पूरी उम्मत के उलमाए कराम को खुसूस से यकीन दिलाता हूँ कि हमारे तरफ से जो कोशिश हो सकती है, जो रियायत हो सकती है, जो खिदमत हो सकती है, जो कॉपरेशन हो सकता है, उसके लिए दिया ही इसके लिए हॉस्पिटल खुली हुई है। बड़ी खुशी का बात है हमारे लिए भी कि भी हम इन फिक्रों में कुछ हिस्सा लेने की और अपने कुछ खिदमत को उम्मत के लिए इस्तेमाल करने का मौका दे रहा है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अहबाब का जो खिदमत दिवस फारिग करके यहाँ आए और हमारे लिए बड़ी हिम्मत अफजाई की बात है। हमारी टीम के लिए, मस्जिद वन मोमेंट की टीम के लिए बड़ी हिम्मत अफजाई की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये मजमानी बल्कि आप हज़रात के ज़रिए से ये बात उम्मत के और अफराद तक पहुँचेगी और इस तरह के खिदमत को उम्मत लेकर खड़ी होगी। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों काविशों को कबूल फरमाए। और एक बात आखिर में मैं कहूँ, जैसे क्वालिटी की बात कर रहे थे मौलाना, हमारा जिसकी कोशिश हो रही है कि भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अभी आज ही 4 बजे हमारे नेफ्रोलॉजी से की बात हो रही थी, हमने कहा किस तरह करना है। जैसे कि 1200 कास्ट पड़ रहा है, हम 900 रुपये में कर रहे हैं, कास्ट कैसे कम किया जाए। तो हमने ये तय किया नहीं, चाहे कास्ट पड़े कोई बात नहीं, क्वालिटी कम नहीं करेंगे। और वो बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि भी बहुत सारी जगह कम क्वालिटी में लोग कर देते हैं, उससे नहीं करना अच्छा है, मौलाना ने बताया। इसलिए कि अगर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उन्हीं की बीमारियां बढ़ेंगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, फला फला। हम 200 रुपया कास्ट कम करते हैं, 2000 रुपये उनका खर्च बढ़ जाता है, हाँ, सही इलाज नहीं होने की वजह से। तो डायलिसिस का भी यही मसला है, दूसरे इलाज का भी यही मसला है। तभी हम पैसों को देखकर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए। आलम साहब इंशाल्लाह यही हमारा मोटिव है कि भी पैसों का कुछ भी इंतजाम किया जाए, लेकिन क्वालिटी में नहीं देंगे तो उससे नहीं करना बेहतर है। इसलिए कि उसके साइड इफेक्ट इतना होने, वो ज़्यादा बीमार होने लगते हो। कहीं अच्छी जगह 200-400 रुपये ज़्यादा करा लेते तो सेफ अंदाज से हो सकता था। तो इंशाल्लाह हम यकीन दिलाते हैं कि इसका भी हम ख्याल रखेंगे कि भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और जो स्टैंडर्ड्स है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, उनका ख्याल रखते हुए मरीजों का इलाज किया जाए ताकि उससे उनको कोई नुकसान न पहुंचे। अल्लाह हमारी मदद फरमाए, अब हज़रात ने हमारे लिए दुआ फरमाए। जज़ाकल्लाह। डायलिसिस की कीमत 1200 पड़ता है, कैसा करे तो भी 1200 पड़ता है। 400 रुपये पेशेंट से ले रहे, 500 रुपये आप एमएमए से दे रहे और 300 कहाँ से आ रही हैं? ये ज़रा बरोबर बोले नहीं डॉक्टर साहब। 300 रुपये अल अंसार की तरफ से आ रहे हैं। ये बड़ा एहसान है, इसको मानना चाहिए। ये भूल गए हैं, सेटअप है, ये सारा सेटअप है, आना जाना है, पर एक बार है। मैं ज़रा जोरांदाल को नियत में 900 कुछ करना बोले तो ज़रा मान लिए। बड़ा एहसान है अल अंसार हॉस्पिटल का इस सिलसिले में। हर डायलिसिस के लिए मिल्लत 500 दे रही है, पेशेंट 400 दे रहे, अल अंसार भी 300 दे रहे। इसके हम शुक्रगुजार होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, इस पॉजिटिव एटीट्यूड को लेना चाहिए। सबको अल्लाह ताला ऐसी तौफीक दे। बस, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे माशाल्लाह आज ये डायलिसिस सेंटर के सिलसिले में आज ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है। ये सबसे पहली तो बात ये है, अल्लाह के नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें फरमाई हैं, 2 नेमतें ऐसी हैं जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो बहुत कम है। तो 2 नेमतों में एक सेहत और एक फराग। तो 2 नेमतें अल्लाह ने हर एक को दिया है, लेकिन इसकी हम कदर नहीं करते। नाकदरी की वजह से ये 2 नेमतों में बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए आजमाइशें हो गई, सेहत की नेमत में भी और फरागत की नेमत। तो आज जो प्रोग्राम हो रहा है, जैसे मौलाना शब्बीर साहब ने भी इसका तज़किरा किया कि ये काम कोविड के बाद से शुरू हुआ है। माशाल्लाह, ये जो मकतब के बारे तज़किरा किया अभी हमारे साथी ने, तो पहले दिन से पूरे कर्नाटक में और हर ज़िले में, जैसे मैसूर से हमारा ताल्लुक़ पहले दिन से है, पूरी यहाँ की मकतब की टीम से।
जैसे ही हालात यहाँ कोविड के ज़माने में हुए तो यही मकतब की टीम आगे बढ़कर आई, फिर उन्होंने काम शुरू किए, बराबर हमारे साथ राब्ते में रहे, बेंगलोर से बराबर राब्ता था, हम भी यहाँ कभी कभार आ जाते थे। और जैसे जैसे फिर आगे चलकर कोविड के बाद फिर एक हॉस्पिटल खोलने की बात आई तो उन्होंने तज़किरा किया, तो फिर उसका भी मशवरा हुआ, बेंगलुरु में भी मशवरा हुआ। माशाल्लाह हमारी जाकिर भाई के साथ जो टीम जुड़ी हुई है, उन्होंने सब मिलकर MMA के नाम से हॉस्पिटल शुरू किया। इसके बहुत अच्छे तासुरात हैं, मस्जिद को बुनियाद बनाया, और ये कॉन्सेप्ट पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मस्जिद को बुनियाद बनाकर जो काम शुरू हुआ है, हम पूरे हिंदुस्तान का सफ़र करते रहते हैं, बल्कि इस निज़ाम को देखने के लिए हिंदुस्तान से लोग आना चाह रहे हैं। अभी यूपी के लोग, दिल्ली से लोग आना चाह रहे हैं, बल्कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने मैसूर वालों से कहा कि अगर मैसूर वाले तैयार हो जाए ये तो हम दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम कराना चाहते हैं। मसाजिद के ज़रिए से कितना काम हो सकता है, कितना काम हो सकता है, इसका बारे में वो मशवरे चल रहे हैं। कानपुर में भी एक प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ भी इसका तज़किरा आया। मैसूर वालों का जो कि निज़ाम है, बहुत अच्छा निज़ाम, मस्जिद को बुनियाद बनाकर एजुकेशन की तालीम, मस्जिद को बुनियाद बनाकर हॉस्पिटल्स का खोलना। और ये भी जो है इस साल रमज़ान के बाद अचानक किसी मामले में जाकिर भाई से हमारी फ़ोन में बात हो रही थी, क्योंकि हमारा नेफ्रो सेंटर बेंगलुरु में चल रहा था, उसमें हम जुड़े हुए हैं। तो मैंने जाकिर भाई से कहा कि इस वक्त डायलिसिस पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि अगर आप MMA के प्लेटफॉर्म से और वहाँ एक नेफ्रो सेंटर आप भी शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आने वाले लोगों के लिए। तो माशाल्लाह उस वक्त जाकिर भाई ने कहा कि हाँ, इसके बारे में हम मशवरा कर लेंगे। माशाल्लाह उसके बाद से बराबर ये बात चल रही थी। अल्लाह का शुक्र है आज वो दिन आया कि माशाल्लाह एक सेंटर बन गया। तो ये एक सिलसिला, यानी ये जो मकातिब के उन्वान से हमने हमारे बड़ों से सुना है कि मकतब सिर्फ बच्चों के कुरान की तालीम नहीं है, आप मकतब को बुनियाद बनाएंगे तो मकतब के ज़रिए से कई मसाइल का हल सामने आएगा, और बच्चों के रास्ते से यानी सेहत का भी और तालीम का भी, और आगे चलकर कई मसाइल के हल का उन्वान बनेगा मकतब का। वो आज आंखों देखा हाल हमारे आंखों के सामने है कि माशाल्लाह यही टीम आगे बढ़ते बढ़ते तमाम चीज़ों को लेकर चल रही है। जैसा अभी हमारे साथी ने कहा, माइक्रो फाइनेंस का काम भी शुरू किया है, और इसी तरह से हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ये सब चीज़ें अगर सही मानों में किया जाए तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा काम होगा। आखिर में मेरी इतनी बात है, हमारे शेख हज़रत मौलाना मुनीर साहब दामद बरकातुहू मुंबई में रहते हैं, हज़रत फरमाते हैं एक है दुआ का करना, एक है दुआ का लेना। ये जो खिदमत इस वक्त हो रही है दुआ की लेने वाली खिदमत है। हज़रत एक मिसाल से समझाते हैं कि दुआ का करना, हम खुद दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं, वो दुआ कबूल भी हो बहुत अच्छी बात है, ना भी हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दुआ का जो लेना है, किसी को दिल खुश हो जाए, किसी की खिदमत कर ले, किसी के काम आ जाए, उस पर जो दुआ मिलती है वो 100% दुआ कबूल होती है। इस पर हज़रत एक वाक़या भी सुनाते हैं, मुख्तसर सा वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक बादशाह की सवारी गुजर रही थी और सामने प्रोटोकॉल उसकी फ़ौज का था। तो चलते चलते एक झोपड़ी में जहाँ बूढ़िया वहाँ रहती थी, बूढ़िया औरत थी, वहाँ उसके सामने, उसके घर के सामने गाय थी। तो ये फौज उस गाय को पकड़कर ज़बह किया और उसका गोश्त इस्तेमाल कर लिया। बूढ़िया को मालूम हुआ, चूँकि वो मालूम नहीं था, वो कहीं गई हुई थी, जब आई तो उसकी गाय चली गई, तो वो रोना शुरू किया। तो लोगों ने कहा कि कुछ देर के बाद यहाँ से बादशाह की सवारी गुजरने वाली है, बादशाह बहुत अच्छी तबीयत का है, अगर उसके सामने तू फरियाद रखे तो तेरा काम हो जाए। तो उसे रास्ता बता दिया गया। वो बूढ़ी औरत जो है एक ऐसी जगह पर खड़ी हो गई जहाँ एक पुल था, ब्रिज था, वहाँ जाकर खड़ी हो गई, यहाँ से बादशाह की सवारी जाने वाली है। तो बूढ़िया ने बादशाह को इशारा देके रुकाया, और बादशाह नीचे आया, कहने लगी बूढ़िया ने, मेरा फैसला, ओ बादशाह, मेरा फैसला इस पुल पर करेगा या पुल सिरात पर करेगा? मेरा फैसला यहाँ इस पुल पर करेगा या पुल सिरात पर करेगा? वो घबरा गया, क्या बात है, क्या परेशानी है? तो सारा किस्सा उसने सुनाया। तो तहकीक की, वाकई उसकी फौज ने उसकी गाय को पकड़ के ज़बह करके इस्तेमाल कर लिया। तो उसने इस मामले में अपनी तरफ से उस बुढ़िया पर एहसान किया, एक के बदले उसने 70 गाय दी। तो उस बुढ़िया के हाथ उठ गए दुआ के लिए। वो बुढ़िया कहने लगी, ऐ अल्लाह, इसने मेरे साथ इंसाफ नहीं, एहसान किया है। इंसाफ तो था एक के बदले में एक देना, इसने मेरे ऊपर एहसान किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तू भी इसके साथ इंसाफ नहीं, एहसान का मामला फरमा। ये उसके जुमले थे, इंसाफ नहीं, एहसान। तो बात तो ख़त्म हो गई, दुआ मिल गई उसको।
कुछ अरसे के बाद जब बादशाह का इंतकाल हुआ है, उस इलाके के एक बुजुर्ग अल्लाह वाले ख्वाब में देखते हैं, पूछा तेरी क्या गुजरी? तो बादशाह कहता है उस बूढ़िया की दुआ से अल्लाह ने मेरी मगफिरत कर दी। ये है दुआ का लेना। ये जो काम हो रहा है अल अंसार के प्लेटफॉर्म से हो या डायलिसिस सेंटर जो शुरू किया है एमएमए वालों का हो या और कोई खिदमत है, और यहाँ मस्जिद भवन और उलमा की टीम जो बनी हुई है, हम इन सबको मुबारकबादी देते हैं। एक बहुत बड़ा काम है ये खिदमत, ये दुआ का लेने का काम है। और एक ऐसा इस वक्त कॉन्सेप्ट यहाँ तैयार हुआ है माशाल्लाह, पूरे हिंदुस्तान के लिए मॉडल है, नमूना है। अभी कुछ दिनों पहले माशाल्लाह हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाए थे, आपके काम को सराहते हुए माशाल्लाह बहुत तारीफ करके गए। हम मौलाना महमूद बद्री साहब के साथ बेंगलोर से यहाँ आए थे, फिर वापसी में हम एयरपोर्ट तक, यहीं से सीधा एयरपोर्ट को जाना था, तो हजरत रास्ते में बता रहे थे कि अगर ये उम्मत ये समझ गई, यानी मस्जिद को उन्वान बनाकर क्या किया जा सकता है, मस्जिद नबवी का अगर यानी शबीह सामने आ जाए उम्मत के, तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला हमारा फुटपाथ पर होगा, रोडों पर नहीं होगा, फुटपाथ पर नहीं होगा। हमारा मसला कहीं गैरों के सामने हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद ही के ज़रिए से हमारे तमाम काम हो सकते हैं। मैं मुबारकबादी देता हूँ, अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जो खिदमत हो रही है, इखलास अता फरमाए, इस्तकामत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस तारीखी डायलिसिस सेंटर के इफ्तिताही मौके पर शहर बेंगलोर से खुसूसन तशरीफ़ लाए हुए हज़रात उलमाए किराम का, नीज़ हमारे इस शहर के उलमाए किराम का जो यहाँ रौनक अफरोज़ स्टेज हैं, और तमाम डॉक्टर साहबान का जो इस फील्ड से अपनी खिदमतों के साथ जुड़े हुए हैं, साल हा साल कई दहाइयों से इस खिदमत में जुड़े हैं, और उनकी ये तवाज़ो देखें कि वो इतना बड़ा काम करते हुए भी हम मुब्तदीन का, बिगिनर्स का वो पूरा साथ दे रहे हैं। इन तमाम डॉक्टर साहबान का मैं तहे दिल से और उलमाए किराम का फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी खिदमत में जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा की कलिमात कहता हूँ। इसी तरह अल अंसार हॉस्पिटल और उसके मैनेजमेंट के अहबाब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मस्जिद वन व उलमा मैसूर की तरफ से मैं आए हुए तमाम अइम्मा, उलमा, ज़िम्मेदारान मसाजिद और अमाइदीन शहर जो यहाँ बैठे हैं, उन सब का भी मैं मशकूर व ममनून हूँ। आप हज़रात इस इफ्तिताही इजलास में तशरीफ़ लाकर आपने हमारी हिम्मत अफजाई की, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आइंदा भी आपकी तवज्जुहात, आपकी खिदमत इस कॉज में हमारे साथ रहेंगी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए सबको। अभी सदर मोहतरम से गुजारिश है कि दुआ के साथ इस इजलास का इख्तिताम करें।